Good evening, everyone. Myself, Dr. S.K. Jha, welcoming everyone on the platform of ICRAIS. Today's class is very special because I am going to discuss Budget 2024-25 and then Economic Survey. ये क्लासेस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि इस बार यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आने वाले समय में भी आपको ये हेल्प करेगा. I will be discussing the budget in two parts. Firstly, the financial side, where all the figures they will be discussed. It's not that only I will be providing you the information, it's a deep analysis and then the conclusion. This is the key to success. तो हम लोग बजट की शुरुआत करें और हो सकता है आपने बजट पढ़ा हो, लेकिन थोड़ा सा जब उसका विश्लेषण होगा तो बहुत सारे कंक्लूजन भी आपके सामने आएंगे. तो बजट की शुरुआत होती है विद सेटिंग अ टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट. ग्रोथ के टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग बजट बनाते हैं. एंड बजट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. इट इज ट्राइंग टू गिव द कंट्री अ डायरेक्शन in which we have to move, because we have many priorities, we have to get many goals, and in a span of 1 year it is not possible to get all the objectives. तो हम लोग मूव करते हैं according to the priority, कि प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग अपना बजट बनाते हैं. Firstly we decide those areas which are on the top priority and accordingly policies are designed. But I repeat, before we can discuss or move to the priority than the theme of the budget, firstly the process of budget. The process of budget starts with setting a target of growth rate. As you know, growth means the rate at which production is increasing, and growth is said to be a necessary condition, because when production increases, country starts moving forward, and in the production process itself income is generated. Growth definitely is a necessary condition, but not the sufficient condition. The sufficient condition is distribution of the growth. Yes, we are concerned with not the quantity of the growth, we are now concerned with the quality of the growth. It means the benefit of the growth must be reaching the common people, must be reaching those who are excluded, and that's why inclusive growth becomes the main agenda in the recent times for every budget, in fact this budget as well. So process of budget starts with the setting a target of growth rate. Okay, we have targeted a growth rate of in between 6 to 7%. 6 to 7%. So there is a change in the approach. Firstly, हम लोग पहले क्या करते थे कि हम लोग पहले single digit growth rate को target करते थे. So that was practically not possible to get. So now we have decided to move in a range. It will be around 6 to 7%. Because there are many factors which are going to affect the projected growth rate. Because a global world, tomorrow what will happen, we don't know. Things may change internally as well externally. So our growth target, it may be get or it may not be get. Anything is possible. So coming to now the growth target. So for the year 2024-25, we have set a target of GDP growth rate, that is called real growth rate, in the between 6 to 7%. Now to grow at a rate of 6 to 7% for such a big economy, it is not an easy task. So keeping in mind the growth rate, the targeted growth rate, we decide the expenditure required, and that is called budgeted expenditure. So for this growth rate, our size of the budget, this is called budgeted expenditure. Budgeted expenditure. So budget expenditure size for the current year, it has been set at rupees 48.2 lakh crore approximately. 48.2 lakh crore. Okay. So size of the budget is 48.2 lakh crore. यानी बजट का जो साइज है ये हमने तय किया है 48.2 लाख करोड़. यानी इस वर्ष में सरकार इतना खर्च करेगी. और सरकार के जितने भी खर्चे हैं तो ब्रॉडली दे आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय. तो पूंजीगत व्यय जिसको हम लोग कहते हैं कैपेक्स,
जो सही पूछो तो देश को आगे बढ़ाने वाला है। और जो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कंट्री का मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो पूंजीगत व्यय जो है पिछले साल इसका जो है लक्ष्य था 10 लाख करोड़ रुपए, इस बार इसको बढ़ा करके 11,11,111 करोड़ किया गया है। और पूंजीगत व्यय जो बढ़ेगा तो राजस्व व्यय बढ़ेगा। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दें तो बाकी जो बच गया वो राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय जो है ये पूंजीगत व्यय से भी जुड़ा हुआ है कि अगर पूंजीगत व्यय जिससे या तो हमारे दायित्व में कमी आती है, जैसे हम लोन को रीपे करते हैं, वो भी मूल के तहत, प्रिंसिपल के तहत। एंड सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एक्सपेंसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर यू नो इट इज़ गोइंग टू बी द की, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तभी देश और देशहीनों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंसेस भारत में कैपिटल के तुलना में कहीं ज़्यादा होते हैं। ऐसा कोई आइडियल इश्यू नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहीं ज़्यादा से बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं तकरीबन 48 लाख करोड़ में जो 11 लाख करोड़ रुपया आपका राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय है, तो बाकी तकरीबन 37 लाख करोड़ के आसपास ये राजस्व व्यय है, यानी 3 गुना ज़्यादा। ऐसा क्यों? पूंजीगत व्यय देश को आगे बढ़ाएगा, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्व व्यय से देश आगे नहीं बढ़ता है। ये देश का मेंटेनेंस कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पूंजीगत व्यय। तो पहला, कंट्री को ट्रीट कंट्री एज अ फैमिली, यानी देश को एक परिवार समझे। तो परिवार का साइज जो बढ़ेगा तो परिवार का मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा। और सेकेंड, पूंजीगत व्यय के बढ़ने से राजस्व व्यय बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल सरकार रोड बनाती है तो दैट इज पूंजीगत व्यय, लेकिन रोड तो बना, साथ साथ ज़रूरी है कि रोड का मेंटेनेंस भी हो। आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे बन रहा है जहाँ पे गाड़ियाँ 150 प्लस की स्पीड भी चलती है, तो क्या उस रोड का मेंटेनेंस जो है और वो भी रेगुलर बेसिस ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर रोड में छोटा सा भी गड्ढा आ गया तो कैजुअल्टी हो जाएगा। तो ये दो कारण है कि राजस्व व्यय हमेशा पूंजीगत व्यय से ज़्यादा होगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि पूंजीगत व्यय तो एक बार होगा और राजस्व व्यय बार बार होगा। तो इसलिए जो है ये कहना गलत है कि पूंजीगत व्यय राजस्व की तुलना में बहुत कम है, तो ये गलत है, ये सही है। और तकरीबन देखा कि पास्ट में भी जो अनुपात रहा है 1 और 3 का रहा है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 और 3 का अनुपात हो तो 1:3, तो कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों एक्सपेंसेस इक्वल इंपॉर्टेंट, एक कंट्री को आगे बढ़ाएगा, एक कंट्री को वहीं रखेगा जहाँ पे है, यानी मेंटेनेंस। इससे जस्ट लाइक अगर आप बिजनेस करते हैं और आपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक मशीन खरीदा और मशीन का लाइफ है 5 साल, तो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मशीन आपका 5 साल तक आपके लिए काम करे, प्रोडक्शन करे, तो ज़रूरी है मशीन का मेंटेनेंस और सर्विसेज। अगर आप नहीं करेंगे तो मशीन जो है अपना पूरा लाइफ जी नहीं पाएगा, एंड यस हार्डली आफ्टर 1 और 2 ईयर मशीन में भी ब्रेक डाउन और आपका रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट विल बी लॉस। सो दिस इज द केस। तो फाइनली बोथ एक्सपेंसेस आर इक्वल इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल की तुलना में लास्ट ईयर इट वॉज 10 लाख करोड़, उसके पिछले साल इट वॉज 7.5 लाख करोड़। तो व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू टू इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यू कैन सी इन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दे आर ऑन। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है पे काम हो रहा है, एंड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मली दे आर कंप्लीटेड विद इन द टाइम। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत एग्रेसिव हो गई है और अपने एक पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है। साथ साथ राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि आप जो है अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाएं, जिससे कि क्षेत्रीय असमानता भी क्या हो, कम से कम हो, और जितना भी सपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से हो सकता है इस बजट में उसकी बात की गई है। उसके लिए जो आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारी योजनाओं को लाया गया है, जिससे कि राज्य सरकारों को भी अपने क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर को, जहाँ पे एसेट क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें गति लाने की बात की गई है। क्योंकि भारत में आपने देखा कि 2 तरह के स्टेट हैं, प्रोडक्शन स्टेट और कंजम्पशन स्टेट। और रिफॉर्म के जो कि 91 में हुआ था एलपीजी मॉडल, उसके 33 साल के बाद अगर हम देखें तो पूरे भारत में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नज़र आती है। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम जो है सिर्फ 7 से 8 स्टेट में हो रहा है, यानी दे आर कॉल्ड प्रोडक्शन स्टेट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव रिमेन इन द कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन स्टेट। वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, दे प्रेफर टू गो फॉर कंजम्पशन, एंड एज अ रिजल्ट क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को बजट में टारगेट किया गया है।
एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आंकड़े की सहायता से इसका महत्व क्या है। अब पहले ग्रोथ का टारगेट फिक्स हुआ, उसके बाद बजट का साइज क्या होगा। तो बजट का साइज तकरीबन तय हुआ 48.2 लाख करोड़, यानी इस वित्त वर्ष में सरकार इतने पैसे खर्च करेगी, जिसमें 2 है आपका पूंजीगत और राजस्व। अब गवर्नमेंट तय करेगी कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आएगा। तो जरा हम लोग अगले पेज में देखें कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग और उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो ये जो आपका बजट है 48 लाख करोड़, 48.2 लाख करोड़, ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है अपने इनकम के सोर्स को जो तलाशेगी, जिसको कहते हैं राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो गवर्नमेंट की अपनी कमाई है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसमें ब्रॉडली 2 पार्ट में आता है। पहला आपका जो है टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। पहला टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। तो टैक्सेशन से सिर्फ 63% भरपाई होगा और नॉन टैक्स से 9%। तो सरकार के जो अपनी कमाई है, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सो दे आर नॉट सफिशिएंट, ये कभी भी पर्याप्त नहीं रहे। ये अभी बजट को फाइनेंस करने में सिर्फ इनका योगदान है 72%। तो देन फ्रॉम वेयर द रेस्ट ऑफ द मनी विल कम। तो बाकी जो पैसा है वो कहाँ से आएगा। अगर हम और आप रहते तो हम लोग क्या करते, अपने खर्चे को ही कम कर देते, लेकिन दिस वे गवर्नमेंट कैन नॉट बी हाउ। गवर्नमेंट अगर अपने बजट को कम करेगी तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ग्रोथ इज गेटिंग कम्प्रोमाइज, और ग्रोथ पे अगर आप कंप्रोमाइज करें इसका मतलब यू आर कंप्रोमाइजिंग एवरीवेयर। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट के साथ है। अब देखोगे भारत में जो बजट का साइज है वो हर एक साल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट इज़ ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 10 to 15%, यानी हर एक अगले साल बजट का साइज करीब 10 से 15% के बीच में बड़ा हो रहा है। और यहाँ तक कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन था, जिसमें सबने सफ़र किया, यहाँ तक कि सरकारों ने भी, और सरकार की जो आय है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने बजट के साइज़ को कम नहीं किया। उल्टा बजट का साइज़ क्या हो गया, 10 या 15% के बीच में बढ़ गया। तो ये तो होगा, और धीरे धीरे जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े, बहुत ही जल्द इस रफ्तार से भारत का जो बजट है वो तकरीबन 100 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। बजट के साइज़ को लेके देखें तो भारत की जो रैंकिंग है वो अभी 3rd है। सबसे बड़ा जो बजट है वो अमेरिका का है, उसके बाद जो है वो चाइना का है। ठीक है, हमारी रैंकिंग कम से कम 3rd है, और दिन पर दिन जो है ये मजबूत होता जा रहा है। अब बाकी पैसा कहाँ से आएगा। तो बाकी पैसे के लिए सरकार जो है पूंजीगत व्यय पे जाती है, यानी कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसमें आपका 2 आता है, पूंजीगत प्राप्ति, जिसको हम लोग कहते हैं बोरिंग, और दूसरा आपका जो है ये है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। अब बोरिंग जो है ये बेसिकली क्या है, ऋण। ये है डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, यानी ऋण की प्रकृति का होता है। और ये जो आपका नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, इसमें 2 आता है। एक है आपका डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, और दूसरा आपका जो है रिकवरी ऑफ लोन, ऋण की वसूली, कि हमने जो अपने पड़ोसी को लोन दिया, इंडिया ने भूटान को लोन दिया, बांग्लादेश को लोन दिया, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को लोन देती है। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, यानी ये भी आपका पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन ये जो है ऋण की प्रकृति का नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सरकार जो है पब्लिक सेक्टर को बेचती है, और साथ साथ जो हमने लोन दिया था उसकी वसूली का मतलब वापस मिल गया। तो ज़रा देखें इनका योगदान क्या है, और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो समझने के लिए। बजट का मतलब या आंकड़े का मतलब सिर्फ आप सोचना मत समझे, अगर हम इसका विश्लेषण करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब इसका जो योगदान रहेगा, यानी 72% तो इससे हो गया, अब इसका योगदान 27%, तो 72 + 27 तो 99, और बाकी जो 1% है वो किससे आएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी है और रिकवरी ऑफ लोन है। पहले हम लोग डिस्कस करें कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है आखिर क्या है। ये जो पॉलिसी है, आप कोई भी पढ़ते हो इंडिया में, जैसे LPG मॉडल, ये भी 91 का है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट का कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अंतर यह है
कि जो पुरानी सरकारें थी, जैसे प्राइवेटाइजेशन, उनकी रफ्तार थोड़ी स्लो थी। निजीकरण की बात करें थोड़ा सा, ये गवर्नमेंट कहती थी थोड़ा क्या होता है पूरा, ठीक है, तो थोड़ा एग्रेसिव थी, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा चाहिए। इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट था, 91 का कंसेप्ट है, शुरू में अर्ली समय में ये पिकअप पकड़ा और लेकिन बाद में ये धीरे हो गया। लेकिन जब ये सरकार बनी 2014 में, उसके बाद जो है विनिवेश की प्रक्रिया तेज हुई और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। सरकार ने जितना टारगेट तय किया विनिवेश से पैसा प्राप्त करने का, उससे ज़्यादा ही पैसा सरकार ने प्राप्त किया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से विनिवेश और यानी इनका योगदान जो है वो 1% है, यानी रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों मिलाकर के सिर्फ 1% है। तो ये जो है 1% से कम है। तो पिछले 4 सालों से हम लोग यही दे रहे हैं कि सरकार जो है विनिवेश पे अपनी निर्भरता कम करती जा रही है। आखिर इससे क्या समझा जाए, आखिर इससे क्या समझा जाए? तो मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, उसके बाद जो है क्या क्या संभावना है, सरकार की आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी है, सरकार अभी क्या सोच रही है। कुछ भी सरकार ने बजट में या सर्वे में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया, लेकिन जिन जिन संभावनाओं की बात हम करेंगे उसमें से कोई एक होगा। अब जरा हम लोग बात करें, ये डेट है 1 फरवरी 2020। ये डेट आपको याद होगा, यानी इस साल 2020 और 21 का बजट प्रस्तुत किया गया था और इसके ठीक 1 से 1.5 महीने बाद, जहां तक मुझे याद है 26 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया और इकॉनमी पूरी तरह से चौपट हो गई और उसका असर अर्थव्यवस्था पे कम से कम 2 साल रहा। तो ये जो बजट आया था लॉकडाउन से पहले आ गया था। तो इस बजट में विनिवेश का जो टारगेट तय किया गया था ये था तकरीबन 2,10,000 करोड़, बहुत ज़्यादा। यानी इस वित्त वर्ष में सरकार इतने के बराबर क्या करेगी, विनिवेश करेगी। और इससे पिछला जो साल था उसमें टारगेट था 1,05,000 करोड़, जो पूरी तरह से सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया। तो सडनली गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बढ़ा दिया और सीधे डबल कर दिया, 1,05,000 करोड़ से 2,10,000 करोड़। यानी डिसइन्वेस्टमेंट को लेके ये गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव हो गई। लेकिन 2 साल पूरी तरह से जो इकॉनमी डिस्टर्ब रहा, तो कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट पे काम नहीं हुआ। यानी जो टारगेट तय किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सारा प्रोसेस से रुक गया था लॉकडाउन के कारण। तो ठीक है, सरकार ने जो है विनिवेश का कोई नया टारगेट अगले 2 साल के बजट में नहीं रखा। तो ठीक है, वहाँ समझ में आ गया कि विनिवेश का जो योगदान है वो कम होगा। लेकिन अब जो है 4 साल के बाद अगर हम देखें तो पुराने जो विनिवेश के जितने भी टारगेट थे, जिन जिन की घोषणा की गई थी, वो तकरीबन सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। तो इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि विनिवेश का जो योगदान होगा बजट को फाइनेंस करने में ज़्यादा होगा, लेकिन जब बजट प्रस्तुत हुआ तो योगदान सिर्फ कितना %? तो 1%। आखिर ऐसा क्यों? तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 कारण मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला कारण जो है, पहले आप आइए इस पे आइए, जो वर्तमान जो बजट है उसमें टैक्स का जो योगदान होगा 63% और नॉन टैक्स का 9%, यानी दोनों मिला दो तो ये 72%। ये है 2024 और 2025 का जो प्रोजेक्टेड है। थोड़ा हम पिछले साल की बात करें, 2023 और 24। 2023 और 24 में टैक्सेशन से आया 58% और नॉन टैक्स का योगदान था 5%, यानी ये 72% और पिछले साल ये दोनों मिलाकर के 63%। तो ये जो है 9% से जो है सरकार की अपनी कमाई जो है वो बढ़ी है। अब यहाँ पे पहले टैक्स की बात करें। निश्चित रूप से टैक्स का जो शेयर है वो 58 से 63 बढ़ा, जो शो करता है बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट को। यस, भारत में कहा जा रहा है कि टैक्स कल्चर आ रहा है, कि लोग जो है वॉलंटरली दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड पेइंग द टैक्सेस। टैक्स का जो बेस है उसको बढ़ा गया है। जीएसटी के आने के बाद हमारा टैक्स सिस्टम इट हैज बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, मोर प्रोडक्टिव। क्योंकि जीएसटी के आने के बाद पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन टैक्स में जो चोरी थी वो थोड़ा कम हुआ है। नतीजा, टैक्स सिस्टम इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा बाइंड हो चुका है। और आप देख सकते हैं मैसिव जंप 58 to 63, ये एक बेहतर इंडिकेटर है, यानी बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बताता है। लेकिन ये जो 5 से बढ़ के 9 हो गया,
इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि नॉन टैक्स का योगदान ऐसे बहुत कम रहता है, 4%, 5%, और ये 5 से जो है 9% हो गया, देखिए स्ट्रेट अवे फ्रॉम 5 to 9%। उसके पीछे की कहानी क्या है कि लास्ट ईयर आरबीआई ने जो रिजर्व ट्रांसफर किया, आरबीआई ने रिजर्व ट्रांसफर किया, शायद आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई रिजर्व बनाती है और उसके बाद ट्रांसफर करती है। उसने ट्रांसफर किया है रिकॉर्ड तकरीबन 2.1 लाख करोड़, यानी 2.1 लाख करोड़। इतना रिजर्व ट्रांसफर आरबीआई ने आज तक नहीं किया, और जिसके कारण क्या हुआ कि ये आपका जो है 5% से जंप करके कितना हो गया, 9%। अब चूंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व प्राप्ति है, इससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है या सरकार के एसेट में कमी नहीं होती है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं तो ये आपको वापस करना है विथ इंटरेस्ट। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी फ्यूचर अर्न करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि एसेट को आपने बेचा, और एसेट आपके लिए क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम। तो व्हेन यू गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, योर सोर्स ऑफ इनकम इज लॉस्ट। तो टुडे यू मे बी गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी बट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। मोरओवर, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो भी डायल्यूट होता है। अब ये जो है मे बी जो 5 to 4% का जो इंक्रीज है, इसने गवर्नमेंट को, हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अब खोल दिए हैं। पहला ऑप्शन है या पहली पॉसिबिलिटी है कि मे बी इन द फ्यूचर जब बजट का साइज और बड़ा हो और सरकार स्ट्रगल करे फाइनेंस करने में, तो हो सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट के नए जो है टारगेट सेट किए जाए। पहली पॉसिबिलिटी, दैट कैन नेवर बी रूल्ड आउट। सेकेंड पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इट मे थिंक अबाउट गोइंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर के पुनर्गठन। अब पब्लिक सेक्टर जो प्रॉफिट कमाती है, तो पब्लिक सेक्टर का मालिक कौन, तो सरकार है। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में। और चूंकि पब्लिक सेक्टर बहुत सारे हैं, एज पर द लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, तो एज कंपेयर, तो एज पर द लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, जो पब्लिक सेक्टर हैं उनकी संख्या है 255। नाउ पब्लिक सेक्टर, दे आर बिग इन साइज एंड दे आर मोर इन नंबर्स। तो इंस्टेड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, अगर हम पब्लिक सेक्टर को रिकंस्ट्रक्ट करें, रिकंस्ट्रक्ट मतलब पुनर्गठन, बेचने के बजाय अगर हम उसमें सुधार करें, और यह भी सही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है, तो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट। तो अगर बेचने के बजाय, अपार्ट फ्रॉम, अगर गवर्नमेंट उसका पुनर्गठन करे, बिल्कुल सक्षम है, तो जो लॉस मेकिंग पीएसयू हैं उनको प्रॉफिट मिला जाए, जो प्रॉफिट में हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाया जाए। जस्ट इमेजिन कि अगर सारे के सारे पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट में आ जाए, तो सारों का जो डिविडेंड है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट के जेब में जाएगा, और गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होगा, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो गवर्नमेंट की जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कि बोरिंग पे निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि बोरिंग अपने आप में एक रिस्की एलिमेंट है। ये चांसेस हैं कि कंट्री में बी फॉलोइंग इनटू डेब्ट ट्रैप। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग से कि ऋण जाल में फंस जाएं, ये अलग मुद्दा है, उस पर जाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो पब्लिक सेक्टर के मे बी पॉसिबल कि रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। अब अगर सरकार की पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा टिल्ट होती है टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, अब उसमें तब होगा क्या कि जो बड़े प्लेयर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, दे विल फॉर्म अ ग्रुप, यानी वो ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कार्टेल। और अगर
कोई उनका जोरदार कंपटीटर नहीं है, तो फिर वो मार्केट को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, कस्टमर को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन। आपने देखा होगा 3 कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, रिलायंस का जियो है, उसके बाद एयरटेल है, और थर्ड इज वोडाफोन। वोडाफोन फ्रॉम ब्रिटेन, वोडाफोन की स्थिति अच्छी तो नहीं है, फिर भी वोडाफोन है। अब ये तीनों मिल करके अगर तीनों मिल जाएं तो निश्चित रूप से एक मार्केट का फॉर्म होता है ओलिगोपॉली। मोनोपोली आपने सुना होगा, मोनोपोली में एक ही प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन ओलिगोपोली ये ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि कुछ ही बड़े प्लेयर होते हैं जो मिल करके मार्केट को रेगुलेट करते हैं, यानी बाजार में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तीनों अगर मिल जाएं तो निश्चित रूप से ये क्या करेंगे, मनमाना ढंग से वसूलेंगे। और ये इतने अच्छे प्लेयर होते हैं कि पहले आपको क्या करेंगे, लॉलीपॉप देंगे, यानी फ्री कॉल सर्विसेज, वीडियो कॉलिंग फ्री, और एक बार जब आप पूरी तरह से इनके चंगुल में आ जाओगे तो फिर सूद समेत आप वसूलते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। तो इनको जरूरी है कि बराबर में एक ऐसा कंपटीटर हो जो कि पब्लिक के बारे में सोचे। अब फॉर एग्जांपल BSNL है, क्या गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि BSNL को लॉस से प्रॉफिट मिला सके? बिल्कुल है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अगर पब्लिक सेक्टर मौजूद होगा तो ये जो है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो मोनोपोली टेंडेंसी है, यानी उपभोक्ता को शोषण करने की जो प्रवृत्ति है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा, और सरकार का जो छवि है वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य का, क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अभी भी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रिटिकल, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है समावेशित विकास, जिसके आसपास पूरा बजट घूमता है, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का तात्पर्य क्या है कि लेट अस इंक्लूड दोज हु रिमेन एक्सक्लूडेड, यानी जो भारत के विकास में जो पीछे छूट गए, जो भारत के विकास का हिस्सा बने नहीं, वो आज भी वही है जहां हमने उनको छोड़ा था 1947 में, तो उनको भी साथ मिलके चले। बट प्राइवेट सेक्टर दे आर नॉट गोइंग टू डू सो। प्राइवेट सेक्टर विल टेक इनटू अकाउंट ओनली दोज हु आर इंक्लूडेड, यानी जिनके जेब में पैसा है। तो कंप्लीटली दे आर गोइंग टू इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये काम किसका है? गवर्नमेंट का है। तो अगर गवर्नमेंट वित्तीय रूप से अगर मजबूत होगी तो फिर जो है ये जो कल्याणकारी राज्य है उसका जो प्रभाव है अब ज़्यादा नजर आएगा। तो इसका दूसरा है, दूसरा पहलू है, यानी अगर सरकार जो है, पहला विकल्प है कि निजीकरण, विनिवेश को तेज करे फ्यूचर में। दूसरा है कि विनिवेश के बदले प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट को क्या करे, रोक करके, और पब्लिक सेक्टर पुनर्गठन करे। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड पर्सन। एक कहावत है, फिटेस्ट मैन टू द फिटेस्ट पोस्ट, सही व्यक्ति को सही जगह रखना। क्योंकि पास्ट में हमने यही देखा है कि सही आदमी कभी सही जगह पर गया ही नहीं है। अब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो चेयरमैन है, उसका बैकग्राउंड है हिस्ट्री, यूपीएससी से क्वालिफाई करके है, तो मजाक का विषय है पब्लिक सेक्टर। तो अब जो है एफिशिएंट व्यक्ति को, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, उनको जो है पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जाए। और शायद कहीं ना कहीं यही चीज़ दिमाग में सरकार के आ रहा है। तो अभी आप चर्चे में था लैटरल एंट्री, लैटरल एंट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी के ऊपर अंगुली उठता है कि वैश्वीकरण के दौर में जिस क्वालिटी का ब्यूरोक्रेट हमें चाहिए, यूपीएससी देने में सफल नहीं हुआ है। और ये एक सच्ची कहानी है, ये हकीकत भी है। इन सब चीज़ों पे हम ना जाएं। तो ये सब चीज़ें भारत में हो रही हैं। तो सरकार का आगे भी निवेश को लेकर के क्या कदम होगा, आई होप कि सरकार को ही नहीं समझ में आ रहा है कि इधर जाएं या उधर जाएं। तो सारे पॉसिबिलिटी को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कम से कम सरकार की जो अपनी कमाई है, जो पिछले साल 63% कवर करता था, वो बढ़ के 72% हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बाकी स्रोतों पे जो निर्भरता है वो थोड़ी कम हो गई। बोरिंग पे निर्भरता जो है वो 27% और विनिवेश तो तकरीबन नेग्लिजिबल है, 1% से कम। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझना है और आपको पढ़ते रहना है पेपर में कि आगे सरकार का क्या कदम होगा, विनिवेश को लेकर के सरकार की आगे की नीति क्या होगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट में पता ही आपको कि चीज़ें हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। तो नाउ कम टू दिस टैक्सेशन की पहली बात करें। अब जो टैक्सेशन का जो योगदान है, इसमें भी कहा जाए तो थोड़ा चेंज आया है। टैक्स से जो है 63% भरपाई होगा। अब टैक्स से दे आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपके इनकम और प्रॉफिट पे लगता है, यानी जिसके ऊपर लगता है वो पे भी करता है और बियर भी करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगता है वो पे तो करता है लेकिन वो बियर नहीं करता है। इनडायरेक्ट टैक्स से सामान्यतः वस्तु एवं सेवाओं पे लगाई जाती हैं। तो पिछले साल तक तकरीबन दोनों का जो योगदान था तकरीबन नेक टू नेक, बराबर बराबर, यानी आधा 50% डायरेक्ट टैक्स है और 50% इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इस बार जो है थोड़ा बदलाव आया है। डायरेक्ट टैक्स से जो योगदान है इस बार तकरीबन 55% रहेगा, यानी इसका 55% और इनडायरेक्ट टैक्स का 45%। यानी हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसमें इसलिए बदलाव आया है कि डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है जो पिछले साल तक 50% था अराउंड, वो अब बढ़ के कितना हो गया 55%, और इनडायरेक्ट टैक्स का ये 50 से घट के 45 परसेंटेज में घटा है। वॉल्यूम टर्म में, रुपीज टर्म में दोनों बढ़ा है। और डायरेक्ट टैक्स का बेस जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या तकरीबन 7.28 करोड़ के आसपास है, यानी 7.7 करोड़ 28 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कमाते हैं लेकिन टैक्स के दायरे से बाहर है, और एक तरह से इम्पॉसिबल है उनको क्या करना, टैक्स के दायरे में लाना। तो काम चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स सिस्टम को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, सो दैट इट कैन जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर। राइट नाउ वी आर लैगिंग बिहाइंड। तकरीबन 2/3 से थोड़ा ज़्यादा जो है सरकार अपने कमाई से पूरा कर रही है। अगर अब बात करें, अब इसमें जो सबसे मेन है जिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे मेन है पहला आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा तकरीबन 19%। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है, जो कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है, दैट इज कॉल्ड 17%। और इनडायरेक्ट टैक्स में पहला है जीएसटी। तो जीएसटी का योगदान है वो तकरीबन 18%। उसके बाद यूनियन कस्टम ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यूनियन एक्साइज ड्यूटी इज 5%। और आपका तीसरा जो है कस्टम ड्यूटी जो बॉर्डर पर लगता है, मेनली इंपोर्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी ये आपका 4%। तो इसका जो योगदान होगा 36% और इसका होगा कितना 27%। तो ये जो है चेंज आया है। यानी अभी वर्तमान बजट की बात करें तो गवर्नमेंट का किस टैक्स से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स। सेकंड आपका जीएसटी, थर्ड इज कॉर्पोरेट टैक्स, फोर्थ इज यूनियन एक्साइज ड्यूटी और फिफ्थ इज कस्टम ड्यूटी। सो दीज आर द मेन 5 सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब हम पहले बात करें डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स हैज बिकम मोर बायंट, मतलब वो ज़्यादा खुश हो गया है, मतलब ज़्यादा जो है अब इनकम जनरेट कर रहा है। इट्स अ गुड साइन। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे इस बार चेंजेज हुए हैं, एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला, कहीं पे नए टैक्स लगाए गए हैं, कहीं पे पुराने टैक्स को कम किया गया है और कहीं पे टैक्स रेट में बदलाव किया गया है। सबसे पहला तो आप जो है आप देखेंगे इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में कुछ चीज़ सेम है। यानी पिछले बजट में जो एग्जेम्पशन लिमिट है, छूट की सीमा, वो 3 लाख थी, इस साल भी 3 लाख है। ये जो 3 लाख है एग्जेम्पशन लिमिट है, इट इज ऑटोमेटिक, ये सबको मिलेगा चाहे आपका इनकम कम हो या ज़्यादा हो। टू गेट द एग्जेम्पशन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा जो बदलाव नया आया कि जो 15 लाख रुपए के ऊपर जितना भी इनकम होगा उस पर फ्लैट 30%। ये पहले भी था, आज भी था। यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन बीच में स्लैब का क्या किया है, रेट को थोड़ा रीशफलिंग किया है। कहीं पे 10% था तो 15% कर दिया। तो ये आप खुद देख लेना। यानी जो मेन चीज़ है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद एग्जेम्पशन अप टू 3 लाख इस एग्जेम्पशन, यानी सो ऑटोमेटिक। उसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो आप टैक्स बचा सकते हो, बट दे आर नॉट कॉल्ड एग्जेम्पशन, दे आर कॉल्ड डिडक्शन। और डिडक्शन जो है ये अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें बहुत सारे सब सेक्शन हैं।
जैसे आम लोगों के बीच में सबसे पॉपुलर है ETC, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक आपको छूट मिलेगा। उसके अलावा ETD है जिसमें 25,000, बहुत सारे हैं। तो ये जो आपका डिडक्शन है ये आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट ऑटोमेटिक। फॉर दैट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है रिबेट का। उससे पहले एक चीज और, ये जो एग्जेम्पशन है ये 3 लाख रुपए तक है, लेकिन जो सैलरीड पर्सन है, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त छूट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ओवर एंड अबव ₹3 लाख। तो टिल लास्ट ईयर ये 50,000 था और इस साल उसको बढ़ा के किया जा रहा है 75,000। यानी जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए जो एग्जेम्पशन हो गया एक तरह से 3,75,000, तो एक तरह का उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है। इसके अलावा कंसेप्ट आता है रिबेट का। आपने पढ़ा होगा, तो रिबेट में भी कोई चेंज नहीं आया कि अप टू, अगर आपका एनुअल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो फिर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। ये बेसिकली एक तरह से जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए एक तरह का एडिशनल बेनिफिट है। आपकी टैक्स लायबिलिटी तभी आएगी जब आपका टोटल इनकम 7 लाख रुपए को क्रॉस कर जाए। ये जो 7 लाख रिबेट का जो लिमिट है ये पिछले साल बढ़ा के किया गया था। पिछले साल ये 5 लाख था और उसको बढ़ा के पिछले साल 7 लाख किया गया। उसके में कोई टैक्स में अभी बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है रिबेट का, डिडक्शन का, एग्जेम्पशन का, ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गया। अब हम लोग उन सब चीज़ों पे डिस्कस करें जो आपका थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। जैसे आप जो है शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, या पहले ऐसे कर लो, कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव हुआ है। इनकम टैक्स लगता है इंडिविजुअल्स के इनकम पे, एंड द कॉर्पोरेट टैक्स दे आर लेवाइड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेज, यानी जो कंपनियों के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है। अब कंपनियां भारत में 2 तरह की है, फॉरेन कंपनीज एंड इंडियन कंपनीज, लेकिन दोनों के लिए गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी अलग है। जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए टिल लास्ट ईयर 40% टैक्स का रेट था, 40% लास्ट ईयर तक। इंडियन कंपनीज के लिए थोड़ा कम था, 30%, और कुछ खास तरह के भारतीय कंपनी के लिए सिर्फ 22% था। वो एक्सेप्शनल था, बट इन जनरल इट वॉज 30%। यानी भारत में 2 तरह की कंपनियां काम कर रही हैं। तो भारतीय कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती हैं उस पर सरकार 30% टैक्स लेती है, और जो विदेशी कंपनी जो FDI के थ्रू आती है, जो बाहर की कंपनियां जो भारत में आके कमाती है प्रॉफिट, तो 40%। तो ये थोड़ा गैप है 10% का, तो इसको लेके काफ़ी विवाद था। तो गवर्नमेंट ने जो है इस बार क्या किया, जो कॉर्पोरेट टैक्स है फॉरेन कंपनीज के लिए, उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 40 से घटा के कितना कर दिया, 35%। 30 पे नहीं लाया, अभी थोड़ा उनका ज़्यादा है, फिर भी गैप हैज़ कम डाउन। इसके अलावा जो बदलाव हुआ है कि एक तो आपका जो एंजल टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया। ये एंजल टैक्स होता क्या है, हमेशा विवाद में रहा है, इसको थोड़ा मैं समझाऊं। एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारे टैक्स होते हैं जो देखोगे आए, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, फिर खत्म हो गया। जस्ट लाइक लास्ट ईयर तक एक और जो टैक्स था जिसके कारण कंट्रोवर्सी हुआ, दैट वाज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम। यानी सरकार जो है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव फ्रॉम बैक डेट। सरकार ने टैक्स रेट आज बदलाव किया लेकिन लागू करेगी बैक डेट से, ऐसा नहीं होता है। ये टैक्सेशन रूल नॉर्मली फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर, और अगले साल सरकार हो सकता है उसी को कंटिन्यू करे या चेंज करे। लेकिन आज चेंज करना और बैक डेट से लागू करना, तो ये नॉर्मली कहीं होता नहीं है। लेकिन वोडाफोन के केस में उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसकी बात की थी, जिसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन मामला पेंडिंग में चला गया और जो है ये जो है बंद कर दिया गया। लास्ट अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम को ख़त्म करें। ठीक उसी तरह से दूसरा टैक्स है एंजल टैक्स, जिसके बारे में बजट कहता है कि इसे हम इस बार क्या करें, ख़त्म करें। अब ये होता क्या, गवर्नमेंट कहती है ये जो हमने ख़त्म किया है ना, तो मेनली टू प्रमोट स्टार्टअप। अब ये एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, पहले ये समझो। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो नए नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। नए बिजनेस में, जैसे मान लो आप जो है स्टार्टअप शुरू करने वाले हो, तो इनिशियली आपको पैसा चाहिए, तो जो व्यक्ति पैसा लगाएगा, क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना,
उनका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जो शुरू होना है, तो रिस्क तो है ही। लेकिन अगर आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगाते हो जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो वहाँ पे रिस्क कम होता है। तो एंजल इन्वेस्टर्स, दे आर बेसिकली टेकिंग दोज प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू स्टार्ट इनिशियली, जो है। तो इस तरह के लोग हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अगर आप पढ़ोगे, इंटरनेट से पढ़ लेना कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं दुनिया की, फेसबुक, इस तरह का जो है, सबके कोई न कोई एंजल इन्वेस्टर हैं। अब एंजल टैक्स क्या होता है? भारत में एक चीज समस्या थी कि बाहर से जो हमारे टैक्स सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उसका लोगों ने फायदा उठाया और ब्लैक को व्हाइट किया, कह सकते हो, या टैक्स बचाया। इसके लिए हमने टर्म दिया एवॉइडेंस ऑफ टैक्स। एक वर्ड आपने सुना होगा, इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी। तो टैक्स की जो चोरी है, इवेजन ऑफ टैक्स जो है, ये इलीगल है, ये अपराध है, और अगर आपको इसमें लिप्त पाया जाता है तो आपको पकड़ा जाएगा, सजा भी होगी, पेनाल्टी। लेकिन दूसरा वर्ड है एवॉइडेंस। एवॉइडेंस जो है, ये चोरी नहीं है, इट इज नॉट पनिशेबल, क्योंकि हमारे टैक्स सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, बिकॉज इंडियन टैक्स सिस्टम इज सेड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, एंड व्हेन थिंग्स आर गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, इट गिव्स राइज टू लूपहोल्स। और आपको पता ही है कि नियम कानून तोड़ने वाले नियम कानून बनाने वाले से 4 कदम आगे हैं। तो हमारे कमजोर टैक्स सिस्टम के लूप होल का बहुत से इन्वेस्टर्स ने फायदा उठाया और टैक्स को बचाया, यानी एवॉइड किया। दिस इज कॉल्ड एवॉइडेंस, दिस इज नॉट इलीगल, एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर पाए, चाहे वो वोडाफोन का केस हो, चाहे वो नोकिया का केस हो, बहुत सारे केस हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत में विदेशी फंडिंग हो रहा है, कोई बुराई नहीं है, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड ग्लोबलाइजेशन टॉकिंग अबाउट फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, नथिंग रॉन्ग। लेकिन ये जो है लूप होल है, उसके कारण जो है ब्लैक को व्हाइट करने में आसानी होती है। अब जरा होता क्या एंजल टैक्स, ये 2012 में ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जहाँ तक मुझे याद है प्रणब मुखर्जी ही उस वक्त वित्त मंत्री थे। तो एंजल टैक्स कब होता है कि जैसे मान लो किसी कंपनी का वर्थ 1 करोड़ है, यानी कंपनी का जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी बिजनेस का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1 करोड़ है। लेकिन इसने जो है फंड रेस किया कितना, तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, यानी कंपनी का जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो 1 करोड़ है। लेकिन कंपनी का जो वैल्यू है उससे ज्यादा वो क्या कर रही है, फंड जनरेट करिए। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया कि जैसे मान लो बैंक में आप जाते हो लोन के लिए, और मैं बात कर रहा हूं सिक्योर्ड लोन, जहां पे आपको कोलैटरल चाहिए होता है, एक सिक्योरिटी देना पड़ता है। आप बैंक से लोन के लिए जाते हो तो बैंक आपसे पूछती है, कुछ है आपके पास संपत्ति या एसेट? आप कहते हो हाँ मेरे पास ये मकान है। तो मकान को कोलैटरल के तौर पे जो है आप रखोगे, और बैंक जो है लोन देने से पहले उसका वैल्यूएशन करती है। तो आपके मकान का वैल्यू सपोज कि 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख के एसेट के अगेंस्ट में बैंक आपको 10 लाख रुपए लोन नहीं देगी। इट विल कीप सम मार्जिन, मार्जिन मनी एज पर द आरबीआई रूल। मान लो 20% है, तो बैंक कहती है कि मैं 20% मार्जिन रखूंगा, यानी 10 लाख माइनस 20%, यानी 8 लाख। बैंक आपसे कहेगी कि मैक्सिमम आपको इसके अगेंस्ट में 8 लाख रुपया तक की लोन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी जो मकान का वैल्यू है उतना भी नहीं मिला। तो ये सही है, क्योंकि इससे बैंक सेफ रहता है, सेफ रहता है। उसी तरह से कंपनी का जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने जो है फंड कितना रेज किया, तो 1.5 करोड़। इसका मतलब कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग, कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्वाभाविक है वो कंपनी के वर्थ के बेसिस में नहीं आ रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी के वैल्यू को देखेगा। तो 1 करोड़ वैल्यू की कंपनी है, तो 1.5 करोड़ लगाना का मतलब जो है कुछ जो है दाल में काला है। यानी एक तरह का ऐसा लगता है कि फॉरेन फंडिंग है, और इंडिया में क्या किया जा रहा है, ब्लैक को व्हाइट करने का एक जरिया बन गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट एंजल टैक्स लेके आई। वो क्या है कि कंपनी का जो वर्थ है 1 करोड़, उससे कितना ज्यादा फंड आया, तो 50 लाख, यानी 50 लाख रुपया ज्यादा फंड आया, तो इस पे ही क्या लगेगा, एंजल टैक्स। रेट्स वर वेरी हाई, अराउंड 30%, अराउंड 30%। यानी जो कंपनी का वैल्यू है उसके अधिक जो भी फंड आया है या फंडिंग हुई है, उसका 30% अराउंड ये टैक्स लगता था। तो ये कहना था कि हम जो है ब्लैक को व्हाइट करने से जो है रोक रहे हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने हटा दिया। दिक्कत सरकार के साथ ये है कि जब लगाती है तभी कोई ना कोई कारण बताती है, और जब हटाती है तो वहाँ भी कोई ना कोई कारण बताती है। गवर्नमेंट का कहना है
कि इससे जो है स्टार्टअप को हम प्रमोट करने में हेल्प मिलेगा, कि स्टार्टअप को फंड की समस्या नहीं होगी। तो ये कारण है, तो एलिजिबल टैक्स को हटा दिया गया। तो ये एक बदलाव है। उसके अलावा बदलाव है आपका जो फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल क्लेम मिलता है, इट्स नॉट रियल एसेट्स, रियल टैंजिबल लैंड बिल्डिंग मशीन नहीं। फाइनेंशियल एसेट जैसे आप शेयर खरीदते हो, डिवेंचर खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो। तो हम बात करें शेयर की, तो ये भी आपका एसेट है बिकॉज नॉर्मली वी इंडियन मीन एसेट का मतलब जो है समथिंग दैट इज रियल। नहीं, एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट्स दे डू हैव एन इनहेरेंट कैपेसिटी टू जनरेट इनकम। अगर कोई भी चीज आपके लिए इनकम जनरेट करने की क्षमता रखता है तो वो आपके लिए एसेट है। तो ब्रॉडली दे आर कॉल्ड कैपिटल एसेट्स, दे आर कॉल्ड कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स जो है ये दे आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें काफी सारा बदलाव हुआ है। फर्स्ट इज कॉल्ड रियल एसेट, जिसमें आपका जमीन जायदाद आता है। वी आर नॉट कंसर्न विद दीज थिंग्स बिकॉज देयर नो चेंज है। एंड द सेकंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट। सेकंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट, वित्तीय निवेश। अब दीज आर योर एसेट्स। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो वो भी आपका एसेट है, क्योंकि उसमें आपके लिए इनहेरेंट कैपेसिटी है टू जनरेट इनकम। व्हाट इज दैट? तो स्वाभाविक है डिविडेंड। व्हेन यू बाय शेयर्स ऑफ सम कंपनी, आप कंपनी के मालिक हो जाते हो, और कंपनी को मालिक हुए तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड एज यू नो आपका जो है कंडीशनल पेमेंट है, प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। अब ये जो आपके फाइनेंशियल एसेट हैं, तो इनको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। अच्छा, एक चीज तो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड कैपिटल एसेट। तो अगर आप इनको बेचते हो, चाहे दिस वन दैट वन, तो दे आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर आप इनको बेचते हो, चाहे लैंड बिल्डिंग हो या शेयर हो, तो दे आर टू पॉसिबिलिटीज। देयर में बी अ प्रॉफिट, देयर में बी लॉस। तो अगर ये लॉस हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल लॉस, और अगर गेन हुआ है तो इट विल बी कॉल्ड कैपिटल गेन। तो लॉसेस पे कोई टैक्स नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अब हम बात करें कैपिटल गेन की, तो आई एम कंसर्न विथ ओनली दिस एंड दैट टू शेयर्स, जहां बदला हुआ है। अब ये जो आपका कैपिटल एसेट है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एंड द सेकेंड इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता क्या है? तो गेन आपको तभी होगा जब आप उसको बेचोगे, और बेचोगे तब जब आपने पहले खरीदा हो। तो अगर आप बेचने से पहले, अगर मान लो आप उसको आज बेचते हो और बेचने से पहले आपने उसको कम से कम अपने पास 1 साल रखा है, 1 साल कम से कम रखा है, और तब अगर बेचा है तो देन इट विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और अगर बेचने से पहले आपने अपने पास 1 साल से कम रखा है, यानी खरीदा 2 महीने के, तो बेचने से पहले आपने उसे अगर 1 साल से कम रखा, मान लो खरीदा 2 महीने बाद बेच दिया, तो देन इट विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। मीन्स द क्राइटेरिया इज द ड्यूरेशन फॉर दैट एसेट वॉज हेल्ड। अब प्रॉफिट तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। शेयर के प्राइस आप देखते होंगे हर एक दिन चेंज होता है। आपने जो है और मैंने दोनों ने आज अपना शेयर बेचा, दोनों को गेन हुआ। आपने 10 दिन पहले खरीदा था, मैंने 1.5 साल पहले। तो आपके लिए क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और मेरे लिए हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी अगर वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, द करस्पॉन्डिंग गेन विल बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और मेरे लिए चूंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, करस्पॉन्डिंग गेन विल बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहां पे टैक्स का जो प्रोविजन है चेंज हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसका जो रेट है वो फिक्स किया गया है 20%, फ्लैट 20%, कोई छूट नहीं है। चाहे डायरेक्टली आपने शेयर मार्केट से ऑनलाइन ट्रेडिंग किया हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जाते हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। इनफैक्ट जब आप बेचते हो, जो आपका सेल प्रोसीड है वो टैक्स डिडक्ट होके ही आता है। यानी जो पेयर है वो क्या करता है, टैक्स काट के ही गवर्नमेंट को जमा करके बाकी आपको देता है। तो ये 20% फ्लैट है।
अब आइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी भी कहानी थोड़ी विचित्र है। ये बात है 2018, इसमें लगातार बदलाव हुआ है। 2018 में जो बजट आया था 1 फरवरी को, तो दैट वाज प्रेजेंटेड बाय अरुण जेटली साहब। ये उनका लास्ट बजट था, बिकॉज उसके बाद ऑन हेल्थ ग्राउंड ही रिजाइन एंड लेटर ऑन ही डाइड ऑल्सो। तो उस बजट में उन्होंने एक डेटा दिया था जो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर जो इंडियंस को तकरीबन इतने का, सॉरी इन्वेस्टर्स को इतने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, 3,67,000 करोड़। एंड एट दैट टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट था, टैक्स रेट वाज 0%। यानी उस वक्त तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं था, 0% टैक्स, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो उन्होंने ये कहा कि 3,67,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्योंकि शेयर मार्केट इस समय सब कुछ कंप्यूटराइज है, द गवर्नमेंट हैज ऑल द डेटा। बट ही ऑल्सो सेड कि ये जो मैक्सिमम गेन है ना, ये बड़े इन्वेस्टर्स को है, यानी छोटे इन्वेस्टर हमारे आपके जैसे लोग नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स को मैसिव गेन 3,67,000 करोड़। और गवर्नमेंट को क्या मिला? जीरो, कुछ भी नहीं मिला। तो गवर्नमेंट को निश्चित रूप से अफसोस होगा कि बड़े लोगों ने खूब पैसा कमाया, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला। तो देन ही मेड सम चेंजेस। उन्होंने जो चेंज किया था उसमें इस साल चेंज आया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट होगा उसमें था अप टू रुपीज 1 लाख, नो टैक्स, जीरो। यानी 1 लाख रुपए तक पूरा छूट था। ये छूट इसलिए दिया गया था कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए, एंड ओवर एंड अबव रुपीज 1 लाख, 1 लाख से जो भी ऊपर होगा उस पर जो फ्लैट है 10% लगेगा। ये चेंज हुआ, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक टैक्स से फ्री, नो टैक्स, एंड ओवर एंड अबव रुपीज 1 लाख टैक्स रेट विल बी 10%। ये पिछले 5-6 साल से चला रहा था। इस बार इसमें बदलाव हुआ है, बदलाव बहुत छोटा है। देखो उन्होंने क्या किया है, ये जो 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया है, 1,25,000। यानी एग्जेम्पशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,25,000। यानी अब जो है आपका 1,25,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, और उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा मीन्स इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 द रेट विल बी 12.5%। यानी एग्जेम्पशन बढ़ा दिया, और 1,25,000 के ऊपर जो है जो भी आपका कैपिटल गेन होगा तो उस पर अब 12.5% के रेट पे टैक्स लेगा। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म जो है कैपिटल गेन। उसके बाद जो है अब सरकार ने क्या किया कि कहीं कहीं बहुत सारे हैं बदलाव, सारे जानने की जरूरत नहीं है कि जो बदलाव हुआ है तो उससे गवर्नमेंट को क्या हुआ है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू का लॉस हुआ। जहाँ पे छूट की सीमा बढ़ा दी या जिनको टैक्स से मुक्त कर दिया तो वहाँ गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हुआ है, और जहाँ पे नए टैक्स लगाए या टैक्स रेट बढ़ाए जो नुकसान हुआ वो हुआ कितना, तो ये होगा कि 36,000 करोड़। और जो गेन हुआ वो होगा तकरीबन एस्टिमेटेड इस 27,000 करोड़। तो नेट जो है सरकार को जो लॉस है दैट इज कॉल्ड रुपीज 9,000 करोड़। यानी टैक्स में जो प्लस माइनस हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसके कारण गवर्नमेंट का जो नेट लॉस है दैट इज कॉल्ड 9,000 करोड़। इट्स नॉट अ बिग थिंग। इसको टेक्निकली गवर्नमेंट कहती है टैक्स फोरगोन, जो टैक्स हमने छोड़ दिया, ये है आपका रुपीज 9,000। और इससे भी टेक्निकल वर्ड है, दिस इज कॉल्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। ये टैक्स के रूप में एक तरह का सरकार का खर्चा है। इसको अगर रिवर्स कर दो, एक्सपेंडिचर टैक्स वो अलग चीज है। एक समय में इंडिया में एक्सपेंडिचर टैक्स लगता था, और मेनली लगता था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, खास करके बड़े बड़े होटल में, जहाँ पे रूम का किराया बहुत ज़्यादा होता था। तो जो किराया होता था उसके ऊपर एक्सपेंडिचर टैक्स सरकार लगाती थी, 10%, 15%, 20% के, कि जो महंगा किराया ले रहा है, महंगे होटल में रुकेगा तो गवर्नमेंट को भी कुछ दे के जाए, बिकॉज द पर्सन कैन एफर्ड। लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया।
उसका जो नाम दिया गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये है आपका टैक्स एक्सपेंडिचर। तो कंफ्यूज मत करेंगे, दैट इज कॉल्ड टैक्स फोरगोन। जो सरकार ने टैक्स का त्याग किया 9,000 करोड़ रुपए बिकॉज ऑफ मेकिंग द चेंजेस। ओके, तो ये आपका जो है कैपिटल गेन टैक्स में चेंज हुआ है। कैपिटल लॉसेस दे आर नेवर टैक्सेबल। एक तो लॉस हो गया, ऊपर से सरकार टैक्स कैसे लेगी। लेकिन एक और प्रोविजन है कि जैसे मान लो आपको कैपिटल लॉस हुआ, मान लो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो इस लॉस को आप अगर तो अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल लॉस हुआ, तो कैपिटल लॉस पे टैक्स नहीं है, लेकिन इस लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगले 8 साल अगर आपका कोई कैपिटल गेन है तो उसके साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब हुआ, मान लो इस साल आपका 1 लाख का जो है कैपिटल लॉस है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करें, और 2 साल बाद यानी तीसरे साल में आपको जो है 2 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ, तो ये 1 लाख का कैपिटल लॉस उस 2 लाख से एडजस्ट हो जाएगा। उस साल जो कैपिटल गेन जिस पे आपको टैक्स लगेगा वो 1 ही लाख रुपया होगा। तो ये बेनिफिट पहले से भी है और दिया गया। तो डायरेक्ट टैक्स में तो यही सारे मेन चेंजेस हैं। अब आइए इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है, लेकिन सीतारमन जी ने जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक कलाकारी की है। और देखो कैसे चालाकी से उन्होंने अपने वित्तीय बोझ को कम किया। इसको मैं जरा करंट से लिंक करूंगा। इसकी चर्चा न तो बजट में सर्व में, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आजकल आप पेपर पढ़ते होगे तो देखते होगे कि बैंकों की एक समस्या क्या आ रही है कि बैंक का जो डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। यानी लोग जो है अब बैंक में सेविंग कम कर रहे हैं, और बैंक में अगर सेविंग नहीं करेंगे तो बैंक जो है लोन कैसे देगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट कंट्री का प्रभावित होगा। इट्स अ बिग कंसर्न राइट नाउ बिफोर द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट कि फॉलिंग डिपॉजिट रेट, कि डिपॉजिट रेट्स दे आर नॉट इंक्रीजिंग। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि द न्यू जनरेशन पीपल, आज के लोगों की बात करें, देयर ऑप्शंस आर मेनी। और अगर उनके पास पैसा है तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। एंड व्हाट दे हैव डन, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियो। और जो अदर्स आपके एरियाज हैं वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, और आज का जो न्यू जनरेशन है दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। अगर आपके पास पैसा है तो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। दैट वाज वेरी पॉपुलर इन द पास्ट। यू कैन गो फॉर शेयर मार्केट, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप जो है गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हो। तो स्टार्ट विथ यू, देयर आर सो मेनी। अब जो बाकी एरियाज हैं वहाँ पे रिटर्न बहुत बेहतर है। अब इस रिटर्न, जैसे बात करें म्यूचुअल फंड की या शेयर मार्केट की, बेसिकली म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आपका पैसा शेयर मार्केट जाता है। तो शेयर प्राइसेस दे मे बी फ्लक्चुएटिंग ऑन डे टू डे बेसिस, बट इन द लॉन्ग टर्म दे आर गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न। तो पिछले 5 सालों से जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न है वो 10 से 12% है। क्या बैंक इतना रिटर्न आपको आपके डिपॉजिट पे देगी? आंसर है नहीं। और सबसे तो मेजर प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के लिए एक हेडेक हो गया है, दैट इज कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। शेयर की तरह गोल्ड का प्राइस भी हमेशा क्या होता है? चेंज होता है, और लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। अब गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज एवरी आफ्टर 8 years द प्राइस ऑफ गोल्ड गेट डबल हो जाता है। मैं एक आपको फिगर दे रहा हूं, आप घर पे कैलकुलेट करना कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम गोल्ड। अभी गोल्ड का प्राइस है 72,000। करीब 25 साल पहले या 26 साल पहले कह दो, 1998 में 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत थी 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया से 72,000 रुपया हो गया, इंक्रीज बाय 13 टाइम्स। कितने साल में? नॉट 13, इससे 18 टाइम्स। 4,000 से 72,000 हो गया। तो पिछले 26 साल में गोल्ड का प्राइस जो बढ़ा है 18 गुना। और इसी से आप निकाल सकते हो
कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है गोल्ड पे। और इसके अलावे पिछले 4-4.5 साल में गोल्ड पे जो रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा है। जरा आप गेस कीजिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो गोल्ड का जो प्राइस था 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जस्ट ऑन द ईव ऑफ लॉकडाउन इट वाज अराउंड, ठीक है, 34,000, अराउंड 34,000। इट्स मार्च 2020। अभी इसका रेट ही कितना है, 72,000। अब आज की बात करें, इट्स सितंबर 2024। तो करीबन 4.5 साल में, ज़्यादा नहीं, 4.5 साल है यहाँ से प्राइस ऑफ गोल्ड इट इज नाउ मोर देन डबल। तो गोल्ड रिटर्न जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी अब गवर्नमेंट के गले पड़ गई है। अब जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, ये आपने पढ़ा होगा, ये बॉन्ड है जिसका रिटर्न गोल्ड से लिंक किया गया है। गोल्ड से लिंक किया गया है, ये जब तक नहीं समझोगे आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को जो दिखता है वो बेसिकली है नहीं। शी हैज़ ट्राइड टू बिकम वेरी स्मार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, उनके पोल खुल चुकी है। अब जैसे मान लो आप क्या करते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कितने का, 1 लाख रुपीज़ का आपने क्या किया, बॉन्ड खरीदा। इसमें मैच्योरिटी इज 5 ईयर्स, 5 साल की मैच्योरिटी है। अब अभी गोल्ड का रेट इतना ही है, 1 लाख रुपया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपया है। आई हैव टेकन 1 लाख कैलकुलेशन का आसान बनाने के लिए। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने गवर्नमेंट को लोन दिया एंड इट विल कैरी 2.5%। अगर सिंपल एवरेज भी ले लो तो 1 साल का 2,500 रुपया, तो 5 साल का कितना हो गया, 12.5। तो जब ये मैच्योर होगा इट विल बी इक्वल टू 1,12,500, ठीक है। लेकिन यहां क्या प्रॉब्लम है कि इसका ये तो ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो इस दौरान गोल्ड के प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, वो आपको अलग से मिलेगा एंड दैट टू टैक्स फ्री। मान लो 5 साल के बाद 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का जो प्राइस है वो हो गया कितना, 1,50,000। 10 ग्राम सोने की कीमत 5 साल बाद जब मैच्योर होगा वो 1.5 लाख है। अभी आपने कितना है, 1 लाख। तो ये जो गोल्ड का प्राइस है वो कितना से अप्रिशिएट किया, 50,000। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये 50,000 जो है ये आपको अलग से मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड टैक्स फ्री, यानी योर गेन इज वेरी हाई। ये जो बर्डन है 50,000, इंटरेस्ट तो दिया जा रहा है, इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये जो 50,000 एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, क्यों, टू मेक दिस कंसेप्ट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हुआ। और ये 50,000 गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक तरह का एडिशनल बर्डन है। पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी टू डिस्करेज इंडियन फ्रॉम बाइंग फिजिकल गोल्ड। लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो ऑल दे आर कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, जिससे हमारा गोल्ड का जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लोग जो है पेपर गोल्ड खरीदें, ये कंसेप्ट था। लेकिन ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ पिछले 4.5 साल में, आपने क्या देखा कि गोल्ड का प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा तो जब मैच्योर होगा, जब बॉन्ड के रिडम्पशन का टाइम होगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्या होगा, और बढ़ गया। अब ये जो है बड़ी समस्या हो गई है, बड़ी समस्या हो गई कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और जो है रिडम्पशन मैच्योरिटी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो गवर्नमेंट का जो बर्डन है इट विल बी वेरी वेरी हाई। तो इन्होंने देखो कैसे किया, इन्होंने क्या किया, एक ही तरीका इस बर्डन को कम करने के लिए कि ये जो आपका गोल्ड का प्राइस है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो क्या किया उन्होंने, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। गोल्ड के बारे में को पता होगा कि डिमांड फॉर गोल्ड इंडिया इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में गोल्ड का डिमांड इंडिया में सबसे ज़्यादा है और गोल्ड इंडस्ट्री को पर एनम तकरीबन इन बिटवीन 800 to 900 मेट्रिक टन इतना गोल्ड सप्लाई होता है। तो डिमांड गोल्ड का इंडिया में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है और सप्लाई 0 है। इंडिया में गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो जो भी गोल्ड इंडस्ट्री को सप्लाई होता है सारे हम इंपोर्ट करते हैं। तो गोल्ड का जो इंपोर्ट का वॉल्यूम है और वैल्यू है इट्स वेरी हाई अलॉन्ग विद द क्रूड ऑयल और कोल। ये हमारी 3 समस्या है। तो यहाँ पे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी कितना था, 15%। ये 15% था। इन्होंने क्या किया,
कि गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी को घटा के कर दिया 6%, ये 6% पे आ गया। तो कस्टम ड्यूटी अगर कम होगा तो गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा। तो अचानक से अगले दिन गोल्ड का जो प्राइस है 72,000 से 68,000 पे आ गया। और फिर आरबीआई जो गवर्नमेंट का बैंक है उसने उसी प्राइस को क्या किया, रिडम्पशन प्राइस कर दिया, यानी उसी प्राइस पे लोगों को पैसे वापस कर दिए, यानी गवर्नमेंट के लिए एक तरह से पैसा बचाना हुआ। तो गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी को 15 से 6 कर दिया गया और प्लेटिनम पे 6.5 कर दिया गया। तो ये था, लेकिन फिर अचानक से गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, अब अगेन क्रॉसिंग 72,000, आप चेक कर सकते हो। तो ये गोल्ड का प्राइसेस अचानक से क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण है। अंतर्राष्ट्रीय कारण है, इसका संबंध जो है डी-डॉलराइजेशन से भी है, क्योंकि बॉन्ड के बारे में आपको पता होगा कि बॉन्ड्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, एंड बॉन्ड्स आर इश्यूड थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर एक देश की सरकार बॉन्ड जारी करती है, क्योंकि हर एक देश की सरकार घाटे में है। तो पूरे दुनिया में करीब मोर देन 150 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर इश्यूड। बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट भी करती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है। तो हु कैन बाय द बॉन्ड्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट? एनीवन। इट्स अ ग्लोबलाइजेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसका सबसे बड़ा देखो खरीदार कौन है। तो सबसे बड़ा जो खरीदार है जिसके पास अमेरिकन गवर्नमेंट का बॉन्ड है, नंबर 1 पे अभी था जापान। जापान के पास अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना बॉन्ड था $1.17 ट्रिलियन। एंड नेक्स्ट इज चाइना। नेक्स्ट इज चाइना। चाइना जो है उसके पास था 1.01 ट्रिलियन। अब इन दोनों कंट्री ने क्या किया, जापान से एक्सपेक्ट नहीं था ये, चाइना से तो ऑलवेज था, बिकॉज चाइना's ड्रीम इज टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर एंड चाइना कैन डू एनीथिंग, इट कैन गो अप टू एन एक्सटेंट। जापान का ऐसा लगता है कि अमेरिका या उसके पॉलिसी के ऊपर से अब भरोसा खत्म हो रहा है, एंड जापान इज ट्राइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन एवरी फील्ड। अगर आपकी जानकारी हो तो जापान वेपन में बहुत वीक है। जापान दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग वॉर गुड्स, बिकॉज जापान की सुरक्षा की गारंटी किसकी है, अमेरिका। जापान पे अटैक मतलब अमेरिका पे अटैक। बट इट सीम्स कि जापानीज पीपल दे हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर ट्रस्ट इन यूएस गवर्नमेंट, और जापान ने रिसेंटली तय किया है कि वो भी अब लड़ाई का सामान बनाएगी। अब इन दोनों ने क्या किया, चाइना और जापान, इन दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड को वापस कर दिया और अपने पैसे ले लिए। चाइना अराउंड 22 बिलियन अमेरिकन डॉलर, इतने के बराबर चाइना ने यूएस बॉन्ड को भेज दिया, जापान ने वापस कर दिया। और जो पैसा इनको मिला, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बाइंग गोल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये दोनों गोल्ड खरीद रहे हैं। अब इतना ज़्यादा अगर गोल्ड खरीदा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा ही, डिमांड सप्लाई रूल है, और इसलिए भारत में भी गोल्ड बढ़ गया प्राइस, तो ये बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। यानी आने वाले समय में गोल्ड का प्राइस भी और बढ़ेगा, क्योंकि वॉर इज गोइंग ऑन, डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। आर्थिक मोर्चे पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, हो सकता है आपको समझ पाते हैं, हो सकता है नहीं समझ पाते होंगे। तो मेरा जहाँ तक अपना कैलकुलेशन अनुमान है कि बाय 2030 तक 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम सोने का जो प्राइस है वो तकरीबन 1,70,000 के आसपास चला जाएगा। रिगार्डिंग गोल्ड, आपको पता है गोल्ड इज द ओनली मेटल विच इज द पार्ट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार का में एक ही मेटल है जो उसका हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड। और दो तरह के कंट्री दे आर वेरी मच सेफ, एक दो जो हैव एक्युमुलेटेड ह्यूज स्टॉक ऑफ डॉलर, जिसके पास डॉलर का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, एंड सेकेंड जिसके पास गोल्ड का रिजर्व है। गोल्ड का रिजर्व है क्योंकि इन द इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी करेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड इज एट पार विथ द डॉलर। तो चाइनीज खरीद रहा है, चाइनीज करेंसी युआन और रेमनेबी ऑफिशियली ये ऑलरेडी हार्ड करेंसी है, और चाइना चाहता है कि डॉलर को रिप्लेस करे, इट विल टेक लॉन्ग, और बाकी जो देश हैं, अधिक से अधिक जो देश हैं वो युआन में ट्रेड करें। और चाइनीज़ को काफ़ी सक्सेस मिला, क्योंकि जून के महीने के आसपास जो गल्फ कंट्री हैं, खास करके सऊदी अरब, उन्होंने पहले जो वो पेट्रोल बेचते थे तो पेमेंट सिर्फ डॉलर में लेते थे। नाउ गल्फ कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग युआन एज पेमेंट। ये अमेरिका के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, और इट्स गिवन चाइना
अ होप कि हो सकता है कि मोर एंड मोर करेंसी दे विल ज्वाइन, तो चाहता है अपने करेंसी को मजबूत करना। ये तो दोनों कारण हो सकता है, या तो हो सकता है कि चाइना का जो इतना पैसा है गवर्नमेंट ऑफ यूएस के पास, वो डाउट है कि मे बी वो सीज कर लिया जाएगा। लड़ाई होगी तो आर्थिक मोर्चे पे आपने देखा जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो रशिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था ये 632 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, और रशिया पे सैंक्शन लगा दिया गया। अब इतना बड़ा जो रशिया का रिजर्व है वो किसी काम का नहीं है। अब जो अमेरिकन एंड नाटो कंट्रीज, अब देखो वो क्या करें, वो कह रहे हैं कि वही पैसा हम लोग जो है यूक्रेन के रीस्ट्रक्चरिंग पे लगाएंगे, यानी रशिया का पैसा अब यूक्रेन को लड़ाई खत्म होगी रीडेवलपमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो कंट्री दे हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर फेथ इन यूएस। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि अपने पैसे को वापस निकालो, और दूसरा है कि दे हैव स्टार्टेड बाइंग द गोल्ड। तो गोल्ड इज द सेफेस्ट कमोडिटी एट पार विथ, तो गोल्ड एक्यूमुलेट करके मे बी पॉसिबल, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि चाइना में गोल्ड फॉर पिग सिस्टम, गोल्ड सिस्टम अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ लिंक कर दे। उसके लिए ज़रूरी है कि गोल्ड का रिजर्व अधिक से अधिक हो, जो अमेरिका ने किया ड्यूरिंग ब्रिटेन वर्ल्ड, और उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन करेंसी स्टार्टेड रूलिंग द वर्ल्ड। क्योंकि इफ द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इज पेग विद द गोल्ड, यानी बैक बाय द गोल्ड, जितने के बराबर नोट छपेगा उतने के बराबर गोल्ड रिजर्व रखा है, तो दैट करेंसीज का एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो करेंसी मजबूत भी होगा। तो ये सब खेल चल रहा है गोल्ड को लेकर के। तो डिस्पाइट सीतारमन जी कट द कस्टम ड्यूटी, फॉर द टाइम बिंग प्राइस कम हो गया 72,000 से 68,000, और उसी प्राइस पे आरबीआई ने वापस कर दिया, रिडीम कर दिया, तो गवर्नमेंट के लिए सेविंग तो हो गई। बट अगेन वी हैव सीन गोल्ड प्राइसेस दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो ये आपका जो है एक ट्रिक कह लो या जैसे भी कह लो, ये बजट में किया गया है। अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो बजट है 48.2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का, लेकिन एक पाई चार्ट बना के सरकार बताती है कि वेयर गो द रूपी। मैथमेटिक्स का खूबी है कि सेम थिंग कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी वेज। 100 रुपीज़ के टर्म में, परसेंटेज टर्म में, 1 रुपये के टर्म में। तो 1 रुपये के टर्म में सरकार बताती है, यानी 48.2 लाख करोड़ इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 रुपये में। 1 रुपये का मतलब 100 पैसा, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू रुपये, और बताती है कि 1 रुपया सरकार अगर खर्च करेगी, यानी इतना खर्च करेगी, तो कहाँ कहाँ कितना पैसा जाएगा। तो पहले हम लोग बात करें सबसे जो बाकी आप देख लेना, सबसे जो बड़ा है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो शेयर है इट्स 19%, 19%, इट्स वेरी हाई। इट हैज कम डाउन, लास्ट ईयर 20% था। यानी सरकार 1 रुपया कमाती है, उसमें से 19 पैसा तो ब्याज का चला गया, जिसको हम लोग कहते हैं पैसा पानी में गया। ये बर्डन ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पास्ट में हमने बहुत ज़्यादा बोरिंग की है, और जब से ये सरकार बनी है रिगार्डिंग बोरिंग इट हैज बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव। यस, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। अब पास्ट में जो हमने बोरो किया उसका भुगतान हम आज करें, और आज अगर हम बोरो करेंगे तो इसका भुगतान फ्यूचर करेगा। आप ऐसे समझो, 1 रुपया सरकार ने कमाया, उसमें से 19 पैसा तो ब्याज का निकल गया, तो बाकी जो डेवलपमेंट के लिए जो बचे वो सिर्फ कितना, 81%। यानी बिकॉज ऑफ द हाई बर्डन ऑफ इंटरेस्ट द इफेक्टिव रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इट हैज कम डाउन। अब कितना ज़्यादा ये एग्रेसिव हो चुकी है सरकार, मैं थोड़ा सा आपको आंकड़े दे रहा हूँ, समझ आ जाएगा। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो हमारे कंट्री के ऊपर टोटल लोन था 4 लाख करोड़, 54 लाख करोड़। इसमें दोनों है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। हम इंडिया के बाहर से भी लोन लेते हैं, इंडिया के भीतर से भी। लेकिन 5 साल बाद जब दोबारा सरकार बनी तो ये बढ़ के हो गया 82 लाख करोड़। यानी विद इन 5 years इट इंक्रीज बाय मोर देन 50%। ऐसा आज तक नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ठीक है, लेकिन फियर है। और 2019 से लेके आज आ जाओ 2024 में, तो नाउ इट इज टचिंग अराउंड, देखिए 150 लाख करोड़, ये भी डबल होने वाला है। तो ये जो है, जो लोग एक्सपर्ट हैं दे आर एप्रिहेंसिव। ऐसा तो नहीं है
कि दिस एग्रेसिव बोरिंग पॉलिसी में प्रूविंग टू बी रॉन्ग और वी वे फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब ऋण जाल, एक ऐसी स्थिति जहां पे एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़े। क्योंकि देखो ये साइकिल बना होता है। अब जैसे हमने ज़्यादा लोन लिया, तो ज़्यादा लोन लिया तो ब्याज भी ज़्यादा होगा, ब्याज ज़्यादा होगा तो डेफिसिट ज़्यादा होगा, डेफिसिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन होगा ब्याज फिर बढ़ेगा, ब्याज फिर बढ़ेगा तो डेफिसिट या घाटा और बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये साइकिल बनता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। और अगर हम देखें, एंड वंस यू फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर टू रिटर्न वन लोन यू विल हैव टू टेक अनदर लोन, यानी एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई कंट्री अगर इस डेब्ट ट्रैप पे फंस जाए तो वहां से निकलना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। आप पढ़ते होंगे कि चाइना के डेब्ट ट्रैप में करीब 52 कंट्रीज फंसे हुए हैं और बहुत मुश्किल है। ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये इस चीज़ को बताते हैं। तो 19 पैसे से 2 है, तो इसलिए गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो एग्रेसिव बोरिंग पॉलिसी है, कैन इट बी सस्टेन फॉर लॉन्ग, क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक बड़ी मुसीबत छोड़ के जाए। लेकिन वही गवर्नमेंट के लास्ट ईयर का सर्वे में आया था एक कंप्लीट चैप्टर, गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया था, वो तो करेगी। और ये भी बताया था क्यों हमारी जो डेब्ट पॉलिसी है इट कैन बी सस्टेन फॉर लॉन्ग। जो भी तर्क दिए हों वो बात की बात है, लेकिन फेयर तो है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक दूसरा चीज़ बताऊँ, कैसे आंकड़ों से डेटा रटने का चीज़ नहीं होता है, एनालिसिस। अब जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बजट आया, उसका फाइनेंशियल ईयर है जुलाई टू जून, तो जून से पहले बजट आया। अब उसका जो बजट है उसमें देखो क्या है, रुपी गोज टू, तो 1 रुपया में 55 पैसा 55 पैसे इंटरेस्ट का है। अब इसे समझ लो, यानी 1 रुपया अगर पाकिस्तान सरकार खर्च करती है तो 55 पैसा 55 पैसे किसका है? इंटरेस्ट का है। ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान नाउ इज इन डेब्ट ट्रैप, और वही हो ही रहा है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल टू रिकवर, एंड फाइनेंस एंड इकॉनमी सच ए पावरफुल थिंग, ये आपके इकॉनमी या कंट्री को ही बर्बाद कर देगा। यस, पाकिस्तान में भी broken into many parts. This is the future of Pakistan. Finance economy इतना powerful चीज़ है कि we can see in the past what happened. USSR super power, it got disintegrated into 15 countries. रशिया 15, USSR तब का 15 देशों बट गया विदाउट फायरिंग अ बुलेट, बिना एक गोली चले हुए। तो पाकिस्तान क्या है? इसलिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो मेन कंसर्न जो है इट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा है और 19% स्टिल वेरी हाई। इट हैज़ टू कम डाउन, इट हैज़ टू कम डाउन। क्योंकि अगर मान लो 1990 वाले हालात फिर आ गए, 1990 इंडियन इकॉनमी पता है आपको कोलैप्स कर गई थी, बोथ ऑन इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल फ्रंट। वी वेर वेरी लकी कि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और वहाँ से उन्होंने इकॉनमी को निकाला और आज हम लोग वी आर ट्राइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली इन 33 ईयर्स, मैसिव अचीवमेंट। लेकिन अगर दोबारा वही स्थिति आएगी तो मुझे नहीं लगता है प्रेजेंट में दिस गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर या भी गवर्नर है जो उस मुसीबत से निकाले। तो ठीक है, रिस्क तो है ही, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा जो है सबसे मेन चीज़ है, इंटरेस्ट का पेमेंट। रेस्ट यू कैन सी, ठीक है, ऑलरेडी एवरीथिंग गिवन। ओके, सिमिलरली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वी हैव डिस्कस। नाउ कम टू सेकेंड एलिमेंट दैट इज कॉल्ड, दैट हैज गॉट मैक्सिमम शेयर। उसमें आपका देखोगे कि सब्सिडी जो है वो 6% एंड डिफेंस 8%। सब्सिडी का कंट्रीब्यूशन घटता जा रहा है परसेंटेज टर्म। डिफेंस 8%, डिफेंस का 8%, सब्सिडी 6%, दोनों मिला के 14%। तो डिफेंस का जो शेयर है रिमेनिंग सेम, लेकिन सब्सिडी 8% से 6% हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू रेशनलाइज सब्सिडी। सब्सिडी को हम क्या करें, इट शुड मेड मोर फोकस्ड, जो रियली नीडी है उसको दे, और सब्सिडी का भी जो लीकेज था उसको कम किया गया है। और हमारा टारगेट क्या था, टू ब्रिंग सब्सिडी विद इन 2% ऑफ जीडीपी, जीडीपी के 2% के नीचे लाना, और वो हम सफल हो चुके हैं,
समझ हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम 8% टू 6% ये भी शो करता है कि बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट, बेटर फिस्कल मैनेजमेंट एज पर द गवर्नमेंट। देन आप देखोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, दे आर टू थिंग्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों में अंतर क्या होता है? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं ना, दे आर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे आर फंडेड 100% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शुरुआत भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और फंडिंग भी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसका शेयर है 16%, यानी 16%। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है कि इस स्कीम को सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर के फाइनेंस करते हैं एक निश्चित रेशियो में। तो नॉर्मली देखोगे ये रेशियो आपको मिलेगा 75-25, यानी 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 25% स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है तो वहां पे ये रेशियो जो है 90:10 हो जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 15% कम हो गया और वो किस पे शिफ्ट हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है स्टेट, तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं और बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इस कैटेगरी में आते हैं, लाइक इंटायर नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल करते हैं। आपने देखा होगा बाकी स्टेट भी अननेसेसरी, जबकि दे डोंट फॉलो द क्राइटेरिया, स्टिल दे कीप ऑन डिमांडिंग, लाइक स्टेट ऑफ बिहार, कि हमें भी क्या किया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है टू गेट द मोस्ट ऑफ द अदर बेनिफिट्स और स्पेशल एडिशनल बेनिफिट जो नहीं हो पाया ना होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो उस पर सरकार का शेयर है 8%, सरकार का शेयर 8%, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16% एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उसका शेयर कितना है आपका जो है 8%। देन आपका पेंशन का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम है अब, और वो तकरीबन जो है वो 4% है। ये नॉर्मली 5% होता था, अब वो घट के 4% हो गया, क्योंकि जो पुराना पेंशन स्कीम है वो अब क्या हो रहा है, बंद हो चुका है। तो ये अपने आप धीरे धीरे कम होगा, नेचुरल प्रोसेस, कि जो लोग पुराने जिन्होंने ज्वाइन किया था, जो पुराने स्कीम में आए थे, तो ठीक है वो पेंशन ले रहे, बट वंस दे डाई, ठीक है, तो दैट पेंशन बर्डन विल कम डाउन। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, 4 से 3 होगा एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका समाधान जो है स्वाभाविक है, समय के साथ साथ है। अगर आपको याद होगा, एक मिलता था पुराने समय में, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलता था। तो आप लोग तो बहुत यंग हो, जब मैं छोटा था उस पर बहुत सारे लोग थे जो जीवित थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको बहुत तरह के बेनिफिट मिलते थे। लेकिन अब 77 से बाद जो है वो अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि 77 साल के बाद कोई स्वतंत्रता सेनानी जीवित होगा ये चांसेस बहुत कम है। तो ये इसलिए वो ऑटोमेटिकली खत्म होगा। सेम विल हैपन। तो ये पेंशन का जो बर्डन है गवर्नमेंट के लिए वो धीरे धीरे कम होगा। इसलिए सुना होगा हाल में पेंशन के फील्ड में गवर्नमेंट कुछ नया करने जा रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम एनपीएस एक नया पेंशन स्कीम लेकर के आई है, और उसके बीच में चॉइस है। तो आप जो है जानकारी के लिए दोनों को पढ़ के उसके फीचर देख लेना कि इफ़ यू आर वर्किंग यू हैव टू डिसाइड विच वन इज मोर बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर। तो ये जो है, उसके बाद जो है बाकी जो बच गए अदर एक्सपेंसेस आपके 9% है, दे आर इंक्लूसिव ऑफ सो मेनी थिंग्स। ओके, उसके बाद फाइनेंस कमीशन, एज यू मस्ट बी नोइंग कि फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं उनका डिवीजन होता है। यानी केंद्र सरकार के जितने भी टैक्स हैं केंद्र सरकार वो अपने पास नहीं रख पाएगी, उसे शेयर करना है विद द स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो 59:41, यानी 41% विल बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास कितना रखेगी, 59%। अब ये जो है 15 फाइनेंस कमीशन का है 41%। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्स तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो को छोड़ के, वन इज कॉल्ड सेस, सेकेंड इज कॉल्ड सरचार्ज। शायद आपने नाम सुना होगा, सेस एंड सरचार्ज।
सेस को कहते हैं उपकर, सेस का मतलब उपकर, कर के ऊपर कर, और दूसरा है सरचार्ज यानी अधिवार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये दो टैक्सेस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होते हैं। बाकी जितने भी टैक्स हैं वो शेयर होते हैं इन द रेशियो 59:41। तो 41% है। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट और एड देती है। ग्रांट मतलब अनुदान, ये वन साइडेड होते हैं, दे आर नॉन रिफंडेबल, ठीक है, तो ये भी पे करती है। और उसके ऊपर अगर स्टेट गवर्नमेंट को फिर पैसा चाहिए तो दे कैन गेट लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब लोग कल चर्चा करेंगे, लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 41% तो कंपलसरी है। तो इसका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है टैक्सेस एंड ड्यूटीज का वो 21% है, 21% है। ऐसे समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन से जितना कमाया उसका 21% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। आप निकाल सकते हैं, जैसे टैक्सेशन से गवर्नमेंट ने कितना कमाया, 63% कमाएगी। इसमें मान लो सेस और सरचार्ज का जो शेयर है वो मान लो 2% है, या बेहतर कर लो 3% है। तो ये शेयर नहीं होगा, तो ये माइनस कर दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इतना परसेंट जो टैक्स है इसका 21%, ठीक है, यानी कितना जाएगा निकाल लेना अपना, ठीक है, करीबन 12% जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और इसके ऊपर जो अदर ट्रांसफर्स हैं जैसे ग्रांट और एड ने कहा उसका शेयर भी कितना है, 9%, ठीक है, 9%। तो ये सब चीज़ें डाटा है, आंकड़े हैं। मेन थिंग है कि इस बार हमारा जो है डेफिसिट्स का क्या हाल है। सबसे पहला जो डेफिसिट है, मेन डेफिसिट है, जिसके बारे में कहते हैं कि किसी भी कंट्री का दो फ्रंट होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल फ्रंट पे हाउ द कंट्री इज मूविंग, यानी इंटरनल फ्रंट पे इकॉनमी कैसा परफॉर्म करी है, उसका बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और एक्सटर्नल फ्रंट पे इकॉनमी कैसा परफॉर्म करी है उसका जो इंडिकेटर है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। तो दो फ्रंट हुए और दोनों फ्रंट पे हमारे डेफिसिट है, घाटे हैं। तो अगर दोनों फ्रंट पे अगर डेफिसिट या घाटा है, यानी राजकोषीय घाटा इंटरनल फ्रंट पे और एक्सटर्नल फ्रंट पे अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो कहा जाता है कि कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट। तो जरा देखें राजकोषीय घाटा, चीज़ें सही चल रही थी, क्योंकि FRBM एक्ट का कहना था, सजेशन है FRBM एक्ट 2003 का, कि आप जो है फिस्कल डेफिसिट को कहाँ ले आए। फिस्कल डेफिसिट को हम ले आए कि हम कहाँ पे, तो 3% ऑफ GDP, 3% ऑफ GDP। और बिफोर द लॉकडाउन थिंग्स वर मूविंग वेरी वेल, और हमें लगता था कि ये बहुत जल्द 3% पे आ जाएगा। लेकिन लॉकडाउन हुआ, पता है आपको, 2 साल इकॉनमी बर्बाद हो गया। लेकिन उस दौरान भी गवर्नमेंट ने अपने बजट के साइज को बढ़ाया, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी कमाई, टैक्स नॉन टैक्स कम हो गया और खर्चा बढ़ गया, तो बोरिंग का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। पहले तो आप ये समझे व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट किसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट के टोटल खर्चे को पूरा करने में जो बोरिंग का कंट्रीब्यूशन है ना, ऋण का, दे आर कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब जैसे 27% है, अभी हमने आज ही पढ़ा कि बोरिंग से कितना फाइनेंस करेगी अपने बजट को, 27%। तो फिस्कल डेफिसिट वॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरिंग इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें बहुत सारी की चीज़ें आती हैं, बजट में पूरा दिया हुआ है। जैसे गवर्नमेंट बाजार से उधारीकरण करती है, मार्केट बोरिंग, या लोगों का जो पैसा जो उनके सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तक आता है, जैसे PF का पैसा, देखिए स्मॉल सेविंग एक्सपेंडिचर, जो कि भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट में पड़ा होता है, ठीक है, तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो बेसिकली ओवरऑल आई कैन से बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक और सिंपली मार्केट बोरिंग। तो टू द एक्सटेंट लोन्स वे टेकन टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा, इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार अपने टोटल खर्चा को पूरा करने में बोरिंग पे ज़्यादा निर्भर करी है, यानी बोरिंग का योगदान बढ़ रहा है। इसका मतलब कि सरकार की जो अपनी कमाई है, टैक्स और नॉन टैक्स, उसका योगदान कम होता जा रहा है। इट्स नॉट अ गुड साइन। तो फिस्कल डेफिसिट को कम पे लाना है, कितना, 3%, तो लग रहा था हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन आया, सब कुछ चौपट हो गया,
एंड देयर वाज अ टाइम 3 years ago व्हेन द फिस्कल डेफिसिट जो है इट वाज मोर देन 6%, वो होना ही था। फिर बाद में जब इकॉनमी पूरा रिकवर हो गया तो लास्ट ईयर का टारगेट जो है, लास्ट ईयर का टारगेट रखा गया 5.6% ऑफ जीडीपी, 5.6% ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर जो भी चुका है, और उसको हमने क्या किया, पूरा कर लिया। तो इस साल जो है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है फॉर द करेंट ईयर 4.9% ऑफ जीडीपी, 4.9% जीडीपी। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेहतर वित्तीय प्रबंधन को शो कर रहा है, यानी इट इज इंडिकेटिंग बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ग्रेजुअली इट विल टेक टाइम। गवर्नमेंट कहती है कि 2027-28 में भी 29 जो है तक हो सकता है, लेकिन फ्यूचर तो क्या है, अननोन है ना। व्हाट विल हैपन टुमारो वी डोंट नो टुडे। कल को फिर जो है कुछ इस तरह का नेचुरल कैलामिटी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन नॉट से कि व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, बट वी आर ट्राइंग अ लॉट टू मूव द कंट्री इन अ मोर डिसिप्लिन मैनर। तो ये आपका जो है फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपका है 1.8%। मैं पहले लिख दूं, रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट है वो देखो कितना है। रेवेन्यू डेफिसिट ये राजस्व घाटा, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और एक आपका है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। पहला आपका जो है यह है रेवेन्यू डेफिसिट, और दूसरा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब पिछले साल जो है, इस साल का टारगेट जो है वो रखा गया है 1.8% ऑफ जीडीपी, 8% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 1.8%। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखा गया है, वो रखा गया है 0.6% ऑफ जीडीपी। अब ठीक है, ये हाल फिलहाल के वर्षों में ये कम हुआ है, क्योंकि अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पता हो, राजस्व प्राप्तियों के बारे, राजस्व घाटा अगर पता आपने पढ़ा होगा, बिकॉज आई कैन नॉट डिस्कस ऑल द कंसेप्ट है। तो ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस है। यानी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से अगर एक्सीड कर जाए तो देन यू विल हैव रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा जो है, इसको लेमन टर्म में कैसे समझोगे, यानी आपकी जो रेगुलर कमाई है वो आपके रेगुलर खर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी आपका जो करंट इनकम है ये इतना जरूर होना चाहिए कि आपके जो करंट खर्चे हैं उसको पूरा करे, और थोड़ा बहुत सरप्लस जनरेट के तौर बेहतर है। तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर है, इसका मतलब कि आपका जो करंट इनकम है वो आपके करंट खर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ये बहुत टेक्निकल लगता है, बहुत टेक्निकल लगता है। लोगों ने किताबी बुकिश अप्रोच फॉलो करके इसे बहुत कठिन बना दिया है। ये सब सारी चीज़ें हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं। अब हमारे आपने घर में जरूर सुना होगा कि पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर है, बिल्कुल सुना होगा। अब आप इसका अलग मतलब निकालते हैं। आप क्या करते हैं, अपनी लंबाई को मापते हैं और 2 साइज बड़ा चादर लेके आते। नहीं, ये जो पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर है, तो पैर हो गया राजस्व व्यय, चादर हो गया राजस्व प्राप्ति। तो पैर चादर से बाहर आ गया, इसका मतलब राजस्व घाटा हो गया। इसको ऐसे भी समझो, भारत के लोग जो है कभी को देखोगे कि सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाते, बात को बिना घुमा फिरा के बोलेंगे। आप किसी से पूछो कि कितना कमा लेते हो, वो सीधे नहीं बताएगा। वो कहेगा, पहला व्यक्ति कहेगा कि इतना कमा लेते हैं कि गुजारा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, लेकिन किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। खा पी के बराबर। किसी तीसरे से पूछो आपका क्या हाल है, वो कहेगा गुजारा भी नहीं हो पाता है। अब ये जो गुजारा भी नहीं हो पाता है, इसका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसी को बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं आमदनी अठनी खर्चा रुपया। तो ये सब तरीका है चीज़ों को ईजी करने का, क्योंकि हम लोग बहुत टेक्निकल हैं, बहुत टेक्निकली हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई वी फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी टफ। अब यहाँ पे बात करें, जो FRBM एक्ट का जो सुझाव है वो देखो क्या है, जो हमने कभी फॉलो नहीं किया। FRBM एक्ट कहता है कि पहले इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को आप 0 पे लाइए, उसके अगले साल रेवेन्यू डेफिसिट को क्या कीजिए, 0 पे लाइए, अभी दूर है। और तब जो है उसके बाद जीडीपी के 3% पे किसको लेके आइए, फिस्कल डेफिसिट को। तो टारगेट जो है सेट तो होता है, जैसे 2017-18 तक
इसको 3 जीरो पे लाने की बात हुई थी, 2018-19 तक इसको लाने की बात हुई थी, जो हो नहीं पाया, और जब लॉकडाउन हुआ तो सारे जो है आंकड़े ही खराब हो गए। तो ये चीज़ें हैं। और अगला जो डेफिसिट है उसका नाम है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का जो टारगेट है वो रखा गया कितना, तो 1.4% ऑफ जीडीपी। ये आपका जो है विश्लेषण का चीज़ है। इसमें हम ये देखते हैं कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा इतना ज़्यादा है, तो उसके पीछे इंटरेस्ट का क्या योगदान है। इंटरेस्ट का तो बहुत बड़ा योगदान है, कारण इंटरेस्ट का बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसे लेमन टर्म्स हो, अगर इंटरेस्ट के लिए 19% है, 19 पैसा है 1 रुपये में, अगर 20 कह लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो 48 लाख रुपए करोड़ रुपए का बजट है, उसका तकरीबन 20% यानी 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है हम क्या करते हैं, ब्याज देंगे इस साल। और अगर पर डे निकालो, सरकार की बोरिंग इतनी ज़्यादा है कि पर डे अगर आप देखोगे तो सरकार कितना उधार लेती है, तो 4000 करोड़ रुपए के बराबर पर डे का बोरिंग है, 4000 करोड़। तो ये जो है ये तो चलता रहता है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि हम लोग एक बेहतर डायरेक्शन जा रहे थे जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, लेकिन ड्यूरिंग द लॉकडाउन एवरीवन सफर्ड इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, एंड सारे डेफिसिट अपने लिमिट को क्रॉस कर गए। 2 साल तक प्रॉब्लम रहा, लेकिन इंडियन इकॉनमी इट्स अ वेरी वेरी रेजिलेंट, बहुत ही ज़्यादा रेजिलेंट है। और इंडिया की जो रिकवरी है इस जस्ट लाइक वी सेफ। लास्ट ईयर भी बजट में सीतारमण ने बताया था कि इंडिया हैज रिकवर्ड फुली। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम बाकी इकॉनमी को देखते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ये जो लॉकडाउन में पीछे गए वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बट इंडियन इकॉनमी हैज फुली रिकवर्ड। तो जो हमारा नुकसान हुआ था 2 साल तक, चाहे हमारे लेवल पे चाहे गवर्नमेंट लेवल पे, तो धीरे धीरे हम कंसोलिडेट करें। वी हैव फेल्ड टू टारगेट एज सेट बाय द FRBM एक्ट, लेकिन वी आर ग्रेजुअली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और अगर फ्यूचर अनसर्टेन है, नथिंग कैन बी सेड, लेकिन अगर थिंग्स आर गोइंग वेल, तो वी आर होपिंग कि वी विल गेट ऑल द टारगेट एज सजेस्टेड बाय FRBM एक्ट। यानी गवर्नमेंट इज सेइंग कि डेफिनेटली हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है वो पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो ये आपका जो टैक्सेशन और जो फाइनेंशियल डाटा वाला साइड था वो हमने आज डिस्कस किया, और कल मैं डिस्कस करूंगा जो बजट का थीम है और जो सरकार के करंट योजना है, लेकिन मेन चीज़ है उसका एनालिसिस। आई होप कि यू एंजॉय द क्लास। टुमारो आई एम गोइंग टू ज्वाइन सेम टाइम 8 PM tomorrow. So get ready for that. Thanks for watching. Thanks for joining. Good night.